Hello and welcome back, my dear students. We are learning outcomes of democracy. And in the earlier video lecture, we got information about social outcomes of democracy, and in that, we learned that accommodation of social diversity. How the democratic government is the best form of government in which most of the democracies are being able to handle or solve their social issues with the help of their democratic ways. We learn the example of Belgium and also we learn about the example of Sri Lanka. How the Belgian government amended their constitution and handled their ethnic issues properly, and they governed their nation very well. But in the Sri Lankan example, you have seen that that was not happening properly because the majoritarianism not work properly. The preferential policies were given to a single community, and that community taken the power in their hand and they exploited their nation by influencing in the politics because they introduced preferential policies for their community only, and it have created in leading the civil war among different communities, just like Tamil speakers, Sinhala speakers. There was a clashes among them. So if any country is not handling their social or ethnic composition properly, it means that their social diversity is not being handled properly by the government, then it will raise several problems. So we can assess democracy's outcome by saying accommodation of social diversity. In the today's video lecture, what we are going to learn? We are going to learn about the dignity and the freedom of individual. Any democratic country, if they are providing, means government is providing the dignity and the freedom to the citizen, then that is the best outcome of democracy, because each and every individual of the nation must accept their dignity. Then whether he or she is a labor or the president of the nation, dignity is most important fact for everyone. Dignity means what? हर एक व्यक्ति को उसकी प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, और फ्रीडम मतलब उसको स्वातंत्र्य मिलना चाहिए. इंडिपेंडेंस है ना, इंडिया इज ए इंडिपेंडेंट कंट्री. सो इन आवर कंट्री देयर इज इंडिपेंडेंस और फ्रीडम टू एवरी सिटीजन्स. विच टाइप ऑफ फ्रीडम इज देयर? मीन्स he can live freely in the country, he can go in any state and live any state. Such type of different freedoms are given. Even these freedoms are assured by our constitution, and we got our fundamental rights. There are different types of fundamental rights which are given to the citizens of the nation, and in that our freedom and dignity is assured. Earlier period, what was happening? Those who were considered superior, they were dominating the poor persons and inferior persons. They were considered as untouchable or Dalits. So there were several type of exploitation in the society. But if the democratic government is being unable to provide the dignity and the freedom to the citizen, then that is not a best outcome of democracy. किसी भी डेमोक्रेसी का एक बेस्ट आउटकम तब जब देखा जाता है जब वो अपने देश के व्यक्तियों को क्या देते हैं, उनकी प्रतिष्ठा देते हैं. फिर चाहे वो लेबर हो तो उससे भी उसकी सम्मान, उसकी प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, उसको उनके अधिकार मिलने चाहिए. डेमोक्रेसी स्टैंड में सुपेरियर टू एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल. ये अगर फॉर्म के साथ डेमोक्रेसी को कंपेयर करेंगे तो ये डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से लोगों को उनके अधिकार दिलाने में सक्षम होती है. द पैशन फॉर रिस्पेक्ट एंड द फ्रीडम आर द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी. कि भाई हर एक व्यक्ति की चाह होती है कि हमें फ्रीडम मिले और क्या मिले, रिस्पेक्ट मिले. कोई अपने ऐसा व्यक्ति देखा है क्या कि वो कोई भी अपमान करके जा रहा है तो वो खुश हो रहा होगा? ऐसा अगर हो रहा है तो वो व्यक्ति है ना अपने डिग्निटी को इम्पोर्टेंस नहीं देता होगा, या फिर उसको है ना खुद की अहमियत नहीं है, ऐसा हम समझ सकते हैं. माय डियर स्टूडेंट, हर एक व्यक्ति को अपनी प्रतिष्ठा एक प्यारी होती है. फिर चाहे वो गरीब क्यों न हो, उसे अपनी इज्जत प्यारी है ना. तो देश में रहने वाला हर एक व्यक्ति एक इस देश का सिटीजन है और उसको उसकी रिस्पेक्ट है, उसकी डिग्निटी उसको मिलनी ही चाहिए. ये अगर डेमोक्रेटिक सरकार उनको देने में सक्षम हो रही है तो वो एक बेस्ट आउटकम है डेमोक्रेसी का, ऐसा हम मान सकते हैं.
तीसरा देख सकते हैं, डेमोक्रेसी एंश्योर डिग्निटी ऑफ वुमेन, इक्वल ट्रीटमेंट एंड इक्वल रिस्पेक्ट ऑफ द इंडिविजुअल इज गारंटीड इन द डेमोक्रेसी। कि भाई डेमोक्रेसी हर एक महिला को यहाँ पे डिग्निटी का अधिकार दिला रही है। इवन डेमोक्रेसी में इस बात को एटलीस्ट मान तो लिया जाता है कि देयर शुड बी इक्वल ट्रीटमेंट टू द वुमेन, कि महिलाओं को क्या मिलना चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। उसके बाद डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज स्ट्रेंथन द क्लेम्स of disadvantages and discriminated caste for equal status and the equal opportunity। कि हमारे देश में जो भी डिस्क्रिमिनेटेड क्लासेस है, जिसको मैंने अभी बोला था है ना, लोअर कंसिडर्ड पीपल, जिसको बैकवर्ड पीपल भी कहा जाता है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनको भी इक्वल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, ऐसे प्रोविजंस बनाए। तो डेमोक्रेटिक सरकार का वो काम ही होता है कि हर एक व्यक्ति को उनकी प्रतिष्ठा दिलानी चाहिए। जैसे कि आर्टिकल नंबर 17 कहलाता है, अनटचेबिलिटी इज बैन इन आवर कंट्री, इज इट दैट, एंड इंट्रोड्यूसिंग ऑफ स्ट्रिक्ट लॉ जस्ट लाइक एट्रोसिटी एक्ट। सो दैट इज ऑल्सो द बेस्ट एग्जाम्पल दैट गवर्नमेंट इज डूइंग समथिंग टू एलिमिनेट दिस टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन द सोसाइटी। तो माय डियर स्टूडेंट, किसी भी डेमोक्रेटिक देश का आउटकम देखना है कि वो प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं है, तो उसके ये पॉइंट देखना चाहिए कि वहाँ की जनता को कितनी डिग्निटी। आप कोई और देखो कंट्रीज है ना जिसमें डिक्टेटरशिप है, वहाँ पे लोगों के ओपिनियन को कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, वो अपनी सरकार के खिलाफ बोल भी नहीं सकते। चाइना जैसे देश में एक आधा बिलियनियर भी अगर कोई सरकार के खिलाफ बोल दे तो उनकी खुद की सरकार उनके ऊपर एक्शन लेती है ना, उनको सजा देने की बातें करती है। उससे तो कई ज़्यादा अच्छा हमारा देश है जैसे कि इंडिया है। इंडिया में आप देखो हर एक व्यक्ति को बोलने के लिए फ्रीडम है। इवन आज कोई भी व्यक्ति अरे अपने डिग्निटी के लिए संघर्ष करने की उसकी ज़रूरत नहीं है, इंडिया में उसको उसकी डिग्निटी मिलती है और वो अपने देश के प्राइम मिनिस्टर तक को सवाल पूछने के लिए यहाँ पे डरते नहीं है। इट मीन्स दैट हमारे यहाँ पे काफ़ी सक्षम डेमोक्रेसी दिखाई देती है। तो इस पॉइंट से हमें यही बात को सीखना है कि जिस देश में लोगों को अपनी डिग्निटी मिलती है और उनको फ्रीडम दिया जाता है, बोलने का फ्रीडम है, रहने का फ्रीडम है, कोई इस जगह पे कोई बिजनेस करने का फ्रीडम है, तो इन सब से हमें ये पता चलता है कि दैट इज़ द पॉजिटिव आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। पीपल ऑलवेज कम अप विथ मोर एक्सपेक्टेशन एंड मेनी कंप्लेंट्स। डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है कि हर बार लोग आपके पास सेटिस्फैक्शन से ही आते हैं। एक काम कर दिया गवर्नमेंट ने तो दूसरी बार और एक्सपेक्टेशन लोगों के बढ़ते हैं और फिर वो और डिमांड करने लगते हैं और वो डिमांड्स को फुलफिल करना सरकार का काम होता है। तो ये एक प्रोग्रेस दर्शाती है कि आपकी डेमोक्रेसी ये क्या हो रही है, डेवलप हो रही है। ये उसी बात का प्रतीक होता है कि आपकी डेमोक्रेसी में जो सरकार काम कर रही है वो डेवलप हो रही है। क्यों? क्योंकि लोग उनके अधिकारों के प्रति जागरूक हो रहे हैं, वो आपके पास कंप्लेंट लेके आ रहे हैं। People are complaining, it means that they knew about their rights and their requirement। इसका मतलब आप इस बात तक सक्षम हो गए हैं, डेमोक्रेसी आपकी इस बात तक सक्षम हो गई है कि आप आपके देश के नागरिकों को उनके अधिकारों के बारे में अवगत करा चुके हैं। जनता अवगत हो गई है तो वो खुद आएगी, डिमांड करेंगी, या तो कंप्लेंट करेंगी नहीं तो और डिमांड करेंगी। तो इससे क्या होगा, वो अपने पहले के हालात से और ज़्यादा इंप्रूव होने लगेंगे, डेवलप होने लगेंगे, और यही तो डेमोक्रेसी का आउटकम होता है। और एक पॉइंट कि द फैक्ट दैट पीपल आर कंप्लेनिंग इटसेल्फ इज द टेस्टिमनी टू द सक्सेस ऑफ द डेमोक्रेसी। कि अगर लोग आके आपके सामने कंप्लेंट कर रहे हैं गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग दिस, गवर्नमेंट ने सिंपली रास्ते बना दिए, अभी हमारे पास कहाँ बड़े बड़े स्कूल है, तो ये इस बात की टेस्टिमोनी है कि दैट पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड। एक बात दे दी है, दूसरी बात मांग रहे हैं, और दूसरी बात मांग रहे हैं तो सरकार को मजबूरन काम करना पड़ेगा, सरकार को काम करना ही पड़ेगा। इट मीन्स दैट जनता सरकार से काम करवा ले रही है क्योंकि उनको पता चल गया है कि ये हमारी खुद की सरकार है ना। तो यही तो डेमोक्रेसी का क्या है, एक्सपेक्टेशन होता है, जिसमें जनता सरकार से काम करवा के ले, काम कर नहीं रही है तो काम करने के लिए मजबूर करे, है ना। जैसे कि एक आधा बच्चा है वो बीमार पड़ गया है तो वो खुद आके बोलेंगे कि डॉक्टर साहब हमें इंजेक्शन दीजिए ताकि मैं ठीक हो जाऊँ। नहीं तो कुछ यहाँ पे ऐसी कंडीशन होती है, डॉक्टर पीछे पीछे भागता है, बच्चा आगे आगे दौड़ता है और वो कोई है ना दवाई नहीं लेता, इंजेक्शन भी नहीं लगवा लेता। एक्चुअली वो इंजेक्शन उस बच्चे को हेल्थ इंप्रूव करने के लिए दिया जा रहा है, उस बच्चे को पता ही नहीं।
जब उसे पता चलेगा तो वो क्या करेगा, वो खुद आके डिमांड करेगा कि यस आई विल टेक द मेडिसिन और आई विल टेक द इंजेक्शन दैट आई विल बी हेल्दी, कि भाई मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। ये एहसास उसको हो जाना ये ज़रूरी है डेमोक्रेसी में। जनता को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कर देना, ये डेमोक्रेसी का एक्सपेक्टेशन होता है। एक बार जनता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो गई, वो खुद आके डिमांड करेंगी, जो आपने दिया उसके ऊपर सेटिस्फाई नहीं रहेंगी। हाँ दिया तो क्या कर लिया, इतना ही क्यों दिया, है ना, इतना तो हमारा अधिकार है, इससे आज ज़्यादा आपको देना चाहिए, है कि नहीं। तो ऐसे अगर लोग डिमांड करेंगे तो क्या हो रहा है, इट मीन्स दैट पीपल आर नॉट सेटिस्फाइंग। ज़रूरी नहीं कि हर बात आप जनता को सेटिस्फाई करोगे, जनता जितना आप काम करोगे उतनी कंप्लेंट लेके आएंगी और मोर एक्सपेक्ट करेंगी। ये डेमोक्रेसी के विकास का प्रतीक होता है। तो आप ये मत कह देना कि सर हमारे यहाँ पे ना लोग बार बार गवर्नमेंट को कुछ बातें मांग रहे और गवर्नमेंट ध्यान ही नहीं देता। ध्यान नहीं दे रहा है तो उसमें गवर्नमेंट की कमी है। ओके, सो दैट इज नॉट द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती है, रिस्पॉन्सिव होती है और लिजिटमेट होती है। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ये बात आप जान लो, यही रियल डेमोक्रेसी है। ठीक है, तो यही तो है, जनता को उनकी डिग्निटी और अधिकार दिलाना, ये एक पॉजिटिव आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी माना जाता है। इस तरह से हम डेमोक्रेसी का ये एक और सोशल आउटकम देख सकते हैं। सो इस वीडियो में मैंने इसी को आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप अगर आपको समझ में आता है तो इसके कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स है ना आपको इस कमेंट्स में लिख देने हैं। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, थोड़ा सा अच्छा लगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय।